Yes, students. So we are discussing our chapter cell biology, and we have completed the basic structure of animal cell. अगर plant cell की बात करें, so it have a cell wall that is not present in animal cell. It have chloroplast that act as site of photosynthesis, kitchen of plant cell. That is, and central vacuole is larger in size as compared to animal cell. Alright, so make sure that you have a clear concept of diagrams also if you are going for preparing for your subjective exam, and if you are preparing for your objective exam, so you have to prepare the you can say functions and structure theoretically also. Okay, so today I am going to discuss next important topic of our cell biology, that is plasma membrane. This is also called cell membrane. इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं स्टूडेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. देखिए, इफ दिस इज द सेल, द आउटर कवरिंग इनसाइड द सेल or that covers the cell is called cytoplasm. Whatever material present inside, the fluid present inside, that is cytoplasm, and the organelles, whether it is nucleus, whether it is lysosome, whatever the organelle is present inside, so that is called cytoplasmic organelles, or simply organelles you can say. Alright, so this is plasma membrane or cell membrane. So today we are going to discuss this plasma membrane. Students, the detailed structure of this plasma membrane can be studied, or you can say is possible to study after 1950s, when electron microscope has been discovered. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी हो पाया, और इसका सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर जो अभी तक दिया है स्टूडेंट 1972 में जो है फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज योर एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम. फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल 1972 में दिस मॉडल वाज गिवन बाय Singer and Nicholson. These two scientists, Singer and Nicholson, they give the fluid mosaic model of plasma membrane, and it is the most accepted model of plasma membrane. All right. Different types of cells are present in our body. If we talk about our blood cells, so there are RBC, WBC and blood platelets. Liver cells are different, kidney cells are different, brain cells, neurons are different. So different types of cells are present in our body. But the main constituent, if we see the plasma membrane, so that is lipids and proteins, and somewhere carbohydrates. So according to fluid mosaic models, our plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. Alright, phospholipid क्या मतलब है स्टूडेंट इसका? Phospholipid, that means lipid is associated with phosphate group, and two layers are present like the structure of sandwich. Alright, one is present upside, one is present downside, and the stuffing is present inside. Similar structure is present here. Alright, so that is fluid mosaic model. If you talk about what is this bilayer structure, so I am giving you idea this side. See, this is the phosphate head groups, and this is the hydrocarbon chain. Phosphate head group, and is a hydrocarbon chain. This is single layer, but unit membrane model was also given by Robertson. ने कहा कि एक ही मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यूनिलैमिनर स्ट्रक्चर कहा उन्होंने मेम्ब्रेन को, या कहा कि सिंगल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर. ऑलराइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड एंड मोजाइक दे आर, यू कैन से इन द व्यू, उन्होंने कहा कि डबल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट है. वन लेयर इज अपसाइड एंड वन फोस्फोलिपिड लेयर इज प्रेजेंट डाउनसाइड. ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन दैट आर लोकेटेड इनसाइड
and long hydrocarbon chain, and phosphate head group are outside. Alright students, so this is the basic bilayer structure. This is phosphate group, this is hydrophilic and water loving. Alright, this is hydrophobic, water repelling it. Alright, and this is the bilayer structure. If we see the you can say position of proteins, so proteins may be present externally, protein may be present in between, and protein may cross the membrane. They may cross the membrane. If they are present outside, they are called external extrinsic proteins, and they are also called, very important students, peripheral proteins. The proteins present inside the membrane, these are called integral proteins. Alright students, or intrinsic proteins. The protein that is crossing the membrane, these are called tunnel proteins. Alright, they are also called as tunnel proteins. They are type of internal protein that is present along the cell membrane. Alright, if we talk about so this is the you can say main fluid mosaic model, and this lipid molecule can show you can say lateral movement. Lipid molecules, very important. Lipid molecule can show lateral movements, and that provides a fluid nature to membrane. That gives it stability. This is very important for stability. Alright, lateral movement of the lipid molecule. If we talk about these proteins, so these peripheral proteins are easy to separate. जो प्रोटीन्स बाहर प्रेजेंट है इनको मेम्ब्रेन से सेपरेट करना क्वाइट इजी, बट द प्रोटीन दैट आर इंटीग्रेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन और दैट इज क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, they are present across the membrane, it's very difficult to you can say isolate the protein. उन proteins को निकालना possible नहीं है. So this is the basic structure given by fluid and mosaic. That is the most accepted model, क्योंकि unilaminar model that is given by Robertson, इसके बाद trilaminar model भी था, that is तो most accepted model यहाँ पे कौन सा है? Fluid and mosaic model. Because today we are taking some basic concept of the chapter, so we will not go in detail in other models. I am taking most susceptible model. When we are going for need specific lecture, in that lecture I will tell you different models that are rejected before this fluid mosaic model. Alright students, if we talk about nature of this membrane, so chemical nature is having you can say lipid, proteins, carbohydrates, and you can say they also have this phosphate group. That's why it is called phospholipid bilayer structure. Alright students, if we talk about how this membrane helps in exchange of molecules, so students, this is very important. Semi permeable. This is semi permeable in nature. कैसा है ये? Semi permeable nature की है, means or you can say selectively permeable. सभी चीजों को अंदर आने की परमिशन नहीं देती है मेम्ब्रेन, सभी चीजों को बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है जो चीजों की जो सब्सटेंसेस की सेल को जरूरत है, ओनली देन कैन गो इनसाइड एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस कैन गो आउटसाइड. एंड द प्रोसेस यूज्ड इज डिफ्यूजन, इज ऑस्मोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेएबल नेचर होना बहुत जरूरी है. डिफ्यूजन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, कोई एनर्जी इसमें नहीं लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट.
अगर यही पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह बात करें लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें क्या कहेंगे इसको? ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ you can say liquid molecules or water molecules from higher concentration to lower concentration is called osmosis, and that is you can say required a semi permeable membrane. Diffusion की बात करें तो that occur in gases, that occur in other molecules, but specifically if we are taking for liquid, so that is called osmosis. Now if the membrane is taking something or you can say exchanging something without any energy, that transport is called passive transport. That transport is called passive transport. चीजों का ट्रांसपोर्ट अगर बिना एनर्जी के हो रहा है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे. एटीपी नॉट यूज्ड. अगर एटीपी यूज हो रहा है तो उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें एटीपी का यूज होगा, इसमें एनर्जी लगेगी. ठीक है. हमने अभी अभी बात की डिफ्यूजन की. किसकी बात की? डिफ्यूजन की बात की. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो. अब ये डिफ्यूजन सिंपल भी हो सकती है स्टूडेंट. सिंपल, अगर कोई प्रोटीन्स, कोई और मॉलिक्यूल्स हेल्प नहीं कर रहे, अपने आप मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं सब्सटेंसेस और अपने आप बाहर आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन. और अगर उसको कोई स्पेशल फैसिलिटेटेड, अगर उसको कोई स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन्स अगर हेल्प कर रहे हैं उसको अंदर बाहर जाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है स्टूडेंट. एनर्जी नहीं लग रही है लेकिन कैरियर मॉलिक्यूल्स यहाँ जरूरत होते हैं, कैरियर प्रोटीन. सिंपल डिफ्यूजन अपने आप से हो सकती है. जैसे अगर हम बात करें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस में देखी गई है, जैसे आप सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की बात करें, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आयन चैनल्स यूज होंगे. क्या चैनल्स यूज होंगे? आयन, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल. अगर हम वाटर की बात करें, वाटर को मूव करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? एक्वापोरेंस. एक्वा मीन्स वाटर और पोरेंस मीन्स पोर. तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट तरह की जो है स्ट्रेटजी सेल मेम्ब्रेन यूज करती है. कुछ चीजों को सिंपल डिफ्यूजन से, कुछ चीजों को कैरियर प्रोटीन्स के हिसाब से. तो उनको हम, जैसे आपको पता है सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए. aerobic respiration, they undergo aerobic respiration, they undergo oxidation of you can say glucose molecule to release energy. तो उस ऑक्सीडेशन के लिए जरूरत है स्टूडेंट्स फूड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की. और आपको पता है सबसे ज्यादा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज. सभी सेल्स ग्लूकोज लेती हैं, उसको ऑक्सीडाइज करती हैं और उससे एनर्जी बनाती हैं. तो ग्लूकोज को अगर मेम्ब्रेन के अंदर जाना है तो एक स्पेशल तरह के प्रोटीन यू कैन से कैरियर प्रोटीन की जरूरत है. इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह सकते हैं. तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है GLUT4. ये नीट का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से. GLUT4 ये कैरियर प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है. GLUT4 ना हो तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर इजिली आ जाए. इससे आपको क्लियर हुआ कि डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एटीपी तो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. अगर उसमें एनर्जी लग रही है तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है स्टूडेंट. तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. और हमने देखा कि क्या क्या बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके हैं. क्या उसका मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल, दैट इज गिवन बाय सिंगल एंड निकोल्सन. ऑलराइट. फ्लूइड एंड मोजाइक, इट इज लाइक यू कैन से, जैसे हम खीर अगर लें, खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सो दैट इज हैविंग अ सेमी सॉलिड यू कैन से chemical nature or that the you can say the thickness or the क्वालिटेटिव अगर हम बात करें तो वो एक सेमी सॉलिड, ना तो वो बिल्कुल फ्लूइड है ना ही बिल्कुल सॉलिड है, तो एक सेमी सॉलिड सा है और उसमें बीच में एम्बेडेड है, बीच में ड्राई फ्रूट्स. तो हम उसी तरीके से ले सकते हैं. कहीं ना कहीं लिपिड्स के अंदर जो है प्रोटीन एम्बेडेड है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है. तो ये जो बेसिक आइडिया है फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल, तो ये आप इस तरीके से इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. अगर फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स को आप देखिए, अगर हम अमीबा के अंदर बात करें तो वो तो अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू ही सीडोपोडिया बनाता है. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ना अमीबा.
वो सीडोपोडिया बनाता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है और उसी की हेल्प से वो फूड एनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं फूड को लेने में, जिसको अगर अंदर ले रहा है तो एंडोसाइटोसिस, वेस्ट को बाहर निकाल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसको एक्सोसाइटोसिस, सॉलिड फूड ले रही है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं फैगोसाइटोसिस, लिक्विड ले रही है, इनटेक कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना केवल सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अलग अलग तरह की शेप्स है। न्यूरॉन की बात करें तो वो इलांगेटेड है, अमीबा की बात करें तो इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस की बात करें तो वो भी इसी तरीके से इरेगुलर स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन की बात करें तो आप देखिए उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा इलांगेटेड सा स्ट्रक्चर है, ऐसा, ठीक है ना। आरबीसी तो अलग अलग तरह की कॉन्सेप्ट। और स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज है लिपिड प्रोटीन की लिटिल बिट डिफरेंट मेम्ब्रेन में डिफरेंट है। जैसे मैं आरबीसी की अगर बात बताऊं आपको, आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, इसके अंदर लगभग 50% जो है लिपिड रहेंगे और 42% जो है प्रोटीन्स रहेंगे, लिपिड्स एंड 42% क्या रहेंगे, प्रोटीन्स। तो इस तरीके से बेटा डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में थोड़ा बहुत ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डिफरेंट हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है जो उसको शेप और प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रही है। अगर हम प्लांट्स की सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म अलग है, प्रोटोप्लास्ट अलग है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और यहाँ जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट both nucleoplasm and cytoplasm are both constituent to form you can say protoplasm. Alright students, so this is the basic you can say structure of plasma membrane along with its function. It helps in exchange of material, it gives shape to its cell, it protects the cell from exocytosis, from you can say turgidity and flaccidity you can say. तो अलग अलग तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन यहाँ पे हैं। और बात करें बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, सेल वॉल होती है और उसकी सेल मेम्ब्रेन कहीं से इनफोल्डेड होती है, एंड दैट इनफोल्डिंग इज कॉल्ड मिजोसोम्स। बैक्टीरिया में इसको मिजोसोम बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और कहीं ना कहीं क्रॉस वॉल बनने में, सेल डिवीजन में भी वो हेल्प कर रही है। तो हमारे अंदर भी सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए सेल बनेंगे तभी जब उनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। एक सेल डिवाइड होकर नए सेल्स तभी बनाएगा, चाहे माइटोसिस है, मेयोसिस, जब मेम्ब्रेन होगी। तो न्यू सेल्स के बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है मेम्ब्रेन, तभी सेल बनेगा, आउटर कवर यही है, ठीक है। और सेल्स को हम कहें डिवाइड होने के लिए, क्रॉस मेम्ब्रेन बनने के लिए, ठीक है, तो इन सभी कामों के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव got some basic and important points of plasma membrane. In a need specific lecture we will go in detail. Thank you students.